मैं हूं जया सिन्हा और भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्पेशल कवरेज लेकर हाजिर हूं। इफी 2023 अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंच चुका है। इफी के मंच पर पहुंचे दुनिया भर से सितारे। बेहद खास रहा वो क्षण जब हॉलीवुड के अक्लेम्ड डायरेक्टर एक्टर माइकल डगलस पहुंचे भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 54वें संस्करण में। मैं हूं जया सिन्हा और आइए शुरुआत करते हैं इफी के रंग सिनेमा के संग के एक और बेहद खास अंक का। बेन किंग्सले, मिशेल यो, ये ऐसे बड़े नाम हैं जो पहुंचे भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के मंच पर। साल 2023 भी किसी से पीछे नहीं है। इफी 2023 के मंच पर पहुंचे अक्लेम्ड हॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर माइकल डगलस, जिन्हें इस बार सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। मीडिया से बातचीत के दौरान, अपने फैंस से बातचीत के दौरान इफी में आकर वो बेहद खुश नजर आए। वैश्विक सिनेमा के सबसे बड़े नामों में शुमार अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस पहुंचे भारत के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में। साथ में सुप्रसिद्ध अभिनेत्री कैथरीन ज़ीटा जोन्स भी पहुंची इफी के मंच पर। इफी के 54वें संस्करण में माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सत्यजीत रे से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। When I was in the University of California in Santa Barbara, I was taking a film course. This is starting in 1963. This is about 1964. And one of the directors that we studied a lot of was Sazita Reg. And if I remember correctly, there was a film called Panther Puchali. Was the first film. Huh? Well said. Pronunciation. And then Charulata. Lonely Way. And I remember, obviously thinking about this award and coming here, the impression, because more the pictures were very interesting. But when I realized that he was not only the director, but he was a writer, that he was a film editor, that he was a musician, that he authored books, he was quite an extraordinary man. And then also the sense of dealing with people. He would not think of being heroic or large scale, but showing a reality and a texture that we had known about. All left me with an impression, and you can see by the people that have been fortunate enough to win this award in the past, and a very impressive group. So I thought it was very well named, and I'm not sure if that was the responsibility of the Minister for Information and Broadcasting, Anurag Singh. And he was part of that decision to name this award of that, but he's done an excellent job, it seems, in the last few years as this has grown to such a large extent. माइकल डगलस ने ऑस्कर से लेकर एमी, गोल्डन ग्लोब और पाम डियोर जैसे कई पुरस्कार अपने नाम किए हैं और इस फहरिस्त में एक और प्रतिष्ठित पुरस्कार जुड़ गया है अब। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा आज वैश्विक मंच पर अपनी मौजूदगी लगातार दर्ज करा रहा है। I do think that under Minister Thakur, as well as Prime Minister Modi, the last few years you've seen more money put into the production and financing of films. It's been a very successful time. I also think there's more and more, and I think sort of the spirit of this festival and the beauty of this festival is you had 78 foreign countries represented, and it's only a reflection of the strength of your Indian filming, which is renowned and known around the world. So I think you're in very, very good hands. I think it's beginning to, even with all of the success here in India, it's traveling more and more.
इस मौके पर विख्यात अभिनेत्री कैथरीन जीटा जोन्स भी मौजूद थी। फिल्म ओम शांति ओम और लंच बॉक्स का जिक्र करते हुए कैथरीन जीटा जोन्स ने भारतीय फिल्मों में काम करने की इच्छा जाहिर की। We showed him Om Shanti Om, which was one of my favorite movies. And Dylan had to, when his friends came over, he was like, "Do you want to see a movie from India?" But I would love to be part of something in the industry. In fact, one of my favorite movies, which is not Bollywood, is called The Lunchbox, which is one of my favorite movies of all time. I came upon it on a long international flight. They had the international section, and I watched it twice, back to back. Then I bought the film, and then I was able to meet Mr. Batra directed it. I called my agent and said, I just saw this wonderful movie, it touched me so much. And then I was happened to be in London and he was there, so I got to meet him. I'm still waiting for him to write me another lunchbox too, but I'll wait, it's fine. But I'm a big fan of that movie. Touched me in a sense of being such a quintessential Indian movie. It just touched me as a European woman so much. माइकल डगलस इफी 2023 में मास्टर क्लास भी लेंगे, जहां वो सिने प्रेमियों के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। बेहद आत्मीयता के साथ, खुले दिल के साथ माइकल डगलस ने सत्यजीत रे को याद किया और भारतीय फिल्मों में काम करने की इच्छा भी जाहिर की। यही तो आकर्षण है, प्रभाव है भारतीय सिनेमा का कि आज विश्व के श्रेष्ठ कलाकार भी यहाँ खिंचे चले आ रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ जया सिन्हा, डी न्यूज़, पणजी, गोवा। सितारों का ये जश्न, सिनेमा का ये महाकुंभ जारी रहेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का सबसे अहम पुरस्कार, द गोल्डन पीकॉक पुरस्कार। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार के लिए दुनिया भर से 15 सर्वश्रेष्ठ फिल्में कंपीट कर रही हैं, जिसमें 3 भारतीय फिल्में शामिल हैं, कंतारा, सना और मीरबीन। मृदुल गुप्ता निर्देशित मीरबीन पहली कार्बी भाषा की फिल्म है जिसे इफी के भारतीय पैनोरमा खंड में जगह मिली। मृदुल गुप्ता, जो कि एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक हैं, हमने की उनसे खास बातचीत, साथ ही फिल्म के निर्माता और लेखक से भी कि क्या खास है इस कार्बी भाषा फिल्म मीरबीन में। इंटरनेशनल कंपटीशन सेक्शन में गोल्डन पीकॉक की दौड़ में इस बार 3 भारतीय फिल्में भी हैं जो दुनिया भर की फिल्मों को कड़ी टक्कर दे रही है। ऐसी एक फिल्म है मीरबीन। हमारे साथ है फिल्म के निर्माता, निर्देशक और फिल्म की स्क्रिप्ट राइटर। सबसे पहले मृदुल गुप्ता से बात करते हैं। मृदुल जी, सबसे पहले अपनी फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या कुछ खास इस बार लेकर आए हैं इस फिल्म के जरिए इफी के मंच? Thanks IFFI, NFDC and the Film Lovers of Goa for give us the opportunity to attend the International Film Festival. It's a great pleasure for us. And Mirbin is a story based on Karbi Anglong, the other part of the India. About this Mirbin, they don't know so much because about our Northeast. So we came out with a feature film with Mirbin. आप बताइए किस तरह से रहा इस फिल्म को बनाने का पूरा सफ़र, कितना खास रहा है और आज इसको यहाँ पर स्क्रीन किया जा रहा है? As a filmmaker, I want to send a message to to the public that this thing should not happen in future. Otherwise, everything will be destroyed. That is why I have decided that based on this incident, I will make a film, because this is not my first film. Last 30 years I have been making films.
पहली कार्बी भाषा की फिल्म है जिसे भारतीय पैनोरमा में जगह मिली है। आप उसकी स्क्रिप्ट राइटर हैं। किस तरह से कार्बी भाषा को एक राष्ट्रीय मंच पर लाने की आपकी कोशिश रही? या थैंक्स। एक्चुअली जो कार्बी लैंग्वेज है तो बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज है। जैसे हमारे लैंग्वेज में जैसे ग्रामर होते हैं, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो या असमीज़ में हो, उतना ग्रामर नहीं होता है, लेकिन ये एक बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज है। तो और इस फिल्म को बनाते वक्त मतलब हमें वही प्रॉब्लम आ रहे थे कि जैसे सारे फोक वहाँ के जो फोक स्टोरीज़ हमने उठाया। हालांकि प्रोड्यूसर साहब ने बोला कि ये फैक्ट के ऊपर आधारित है, लेकिन फिर भी इसमें हमने एक फोक स्टोरीज़ भी इसमें एक दिखाया। जो फोक स्टोरी के थ्रू हमने ये इस कहानी को एक रूप दिया है फीचर फिल्म का। जो आजकल के जनरेशन के बच्चे कार्बी लैंग्वेज बोलते हैं, उनको जो पुराने ग्रैंड मादर हो, ग्रैंड फादर हो, उनके कार्बी लैंग्वेज में उनको भी पता नहीं होता है। तो उसमें भी बहुत सारा दिक्कतें आई थी, लेकिन एक ऐसे एक लैंग्वेज के एक फिल्म, इस तरह का एक प्लेटफॉर्म मिला, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिला, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। बहुत सर थोड़ा सा बताइए और फिल्म के बारे में, किस तरह से एक बनाना फिल्म, क्योंकि काफ़ी गंभीर मुद्दे और संवेदनशील मुद्दे को ये उठाती है, उस फिल्म को बनाना और फिर यहाँ पर उसकी एक स्क्रीनिंग करना या उसे ऑडियंसेस तक पहुँचाना, ये सफ़र एक बहुत लंबा होता है। Yes, certainly it's a long journey. We have started during COVID period. So after COVID period, we tackle a lot of Jamelas and others. So after that thing, we came here in IFFI with the Karbi language film, and it's a great pleasure for us. तो मीरबीन, ये पहली कार्बी भाषा की फिल्म है जिसे भारतीय पैनोरमा में यहाँ जगह मिली है, और जगह ही नहीं, ये फिल्म जो है वो दुनिया भर से आई फिल्मों को कड़ी टक्कर भी दे रही है। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार की दौड़ में है। देखना होगा कि कौन होगा विजेता। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ जया सिन्हा, पणजी, गोवा। भारतीय फिल्म उद्योग लाखों लोगों के लिए रोजगार का स्रोत है। महामारी के समय फिल्म निर्माण बंद हुआ, ऐसे में हजारों परिवारों की रोजी रोटी छिनी। तब कई ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस सामने आए, कई ऐसी फिल्में सामने आई जो कई परिवारों के लिए रोजगार का साधन बनी। ऐसी ही एक बहुत ही खास फिल्म है कन्नड़ फिल्म आरारी रारू। क्यों है ये फिल्म इतनी खास, हमने जानने की कोशिश की फिल्म की स्टारकास्ट से, प्रसन्ना शेट्टी और फिल्म के निर्देशक संदीप कुमार। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में देश भर से फिल्में आ रही हैं और उनका प्रदर्शन हो रहा है। और हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं जिस तरह से क्षेत्रीय सिनेमा का बोलबाला है पूरे वैश्विक सिनेमा में, ऐसी एक और बेहद खूबसूरत फिल्म आरारी रारो का यहाँ पर स्क्रीनिंग की गई। हमारे साथ हैं फिल्म के एक्टर प्रसन्ना और फिल्म के डायरेक्टर संदीप सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन न्यूज़ पे। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आपका कैसा अनुभव रहा, फिल्म की स्क्रीनिंग हुई और किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? ये हमारा पहला फिल्म फेस्टिवल है, सो हमें बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में हमें एक छोटी सी जगह मिला है। सो वी आर गिफ्टेड, दैट्स व्हाट आई कैन से। जिस तरह से हमने सुना, आपने कहा कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड के साथ ये फिल्म बनाई गई, लेकिन आज ये फिल्म महोत्सव में ही नहीं आ रही, काफ़ी सराहना भी बटोर रही है। तो क्या उम्मीदों के साथ ये फिल्म बनी थी? कितना आपको लगा कि वो पूरी होती नजर आई? जब हम लोग ये मूवी बनाए थे तो हम लोग को थोड़ा आइडिया था कि ये मूवी अच्छा बनेगा, लेकिन इधर तक आएगा इसका हम लोग वी नेवर थॉट। हम लोग जितना उम्मीद किए थे उससे ज़्यादा हो रहा है, तो बहुत खुशी भी हो रहा है हम लोगों को। इस बात पे थोड़ा सा हमारे हिंदी दर्शकों को फिल्म के बारे में बताइए। आरारी रारो एक लालाबाई है, ये मैं जानती हूँ, लेकिन थोड़ा सा और इस फिल्म के बारे में। ओके, डायरेक्टर ऑलरेडी बोला है ना, इस पर हम लोग कुछ भी प्रीचिंग नहीं कर रहे, लेकिन ये प्योर ह्यूमन वैल्यूज़ के बेस में है। जो भी ये फिल्म देखेगा उसको इधर से नहीं इधर से टच होगा फिल्म। सो वो मैं बोल सकता हूँ। और एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आज के दिन सोसाइटी में ये मिस हो रहा, जो मिस हो रहा है और जो रिक्वायरमेंट है, ओके, उसके बारे में हमने फिल्म बनाया है। एंड लोगों के लिए जो ऑलरेडी इसको देख के आया है बाहर, उन लोगों को इमोशनली बहुत कनेक्ट हुआ है फिल्म। सो दैट वाज एन अमेजिंग मोमेंट फॉर अस। अगर हम इफ़ी की बात करें तो यहाँ पर एक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय ऑडियंस आपको मिलती नज़र आती है। उस लिहाज से क्या कुछ रिस्पांस आपको मिला, या इस फिल्म को लेकर आगे क्या कुछ तैयारी है या उम्मीद है कि कहाँ इस फिल्म को लेके जाना है? ये मूवी का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसे है कि इसके लिए आपको कोई लैंग्वेज का ज़रूरत नहीं है। आप बिना
लैंग्वेज को बिना विदाउट नोइंग द लैंग्वेज आप आके देख सकते हैं। तो हम लोगों का अंतर्राष्ट्रीय जो ऑडियंस हम लोग को बेंगलुरु में कोई देयर इज अ लेडी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो हम लोग ऐसा लगता है कि एक कन्नड़ा मूवी से ज़्यादा एक यूनिवर्सल मूवी जैसा है, क्योंकि एवरीवन कैन कम एंड वॉच। ये हम लोग का फीडबैक मिला है, इधर भी ऐसे फीडबैक मिल रहा है। सो दैट्स इट। प्रसन्ना, आपका क्या कुछ उम्मीदें हैं ये फिल्म के साथ, और क्या कुछ तैयारी है आगे ले जाने की, और साथ ही जब इस तरह से आप यहाँ पर इंटरनेशनल ऑडियंस और फैंस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो वो कैसे आप कर रहे हैं? नहीं, अब हमारा अभी तक जो भी हुआ है ना, हम लोग सोचे नहीं थे कि ऐसा इतना सब हो जाएगा, लेकिन अब से हम लोग ज़्यादा कंपटीशन में ये फिल्म को पुश करेंगे, सो दैट लाइक ज़्यादा लोग देख सकता है। सो हमारा इंटेंशन सिर्फ वही है कि पीपल इसको देखना है। हम कभी भी पहले से ही संदीप सर ने बोला, ये प्रोडक्शन हाउस जो भी है TMT प्रोडक्शन, दे आर इनटू द सोशल बिजनेस। सो व्हेनेवर दे डिड दिस फिल्म, इट वाज जस्ट कोरोना के बाद में किया था। उन लोगों का मेन इंटेंशन था थोड़ा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनाओ ये फिल्म वर्कर्स के लिए। सो बिकॉज दिस फील्ड वाज क्वाइट क्रिटिकल आफ्टर कोरोना, पीपल वेर डिफिकल्ट टू इन फाइंडिंग द जॉब्स, इसलिए वो इंटेंशन पे शुरू किया। मे बी वो एक अच्छा थॉट उन लोगों के अच्छा थॉट से शुरू किया ना, सो इसलिए ये फिल्म यहाँ तक पहुँचा। मे बी दे आर लाइक दे आर सेल्फलेस, उन लोग के कुछ भी नहीं कि यू प्रॉफिट लेके आओ और बड़ा बिजनेस बनाओ। नो, दे वर नॉट थॉट दैट। दे थॉट जो भी आएगा उस पर फिर से करो, थोड़े लोगों को काम दे दो, ये इंटेंशन पे ये फिल्म किया। अरारी रारू एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है जो आपके दिल से सीधा कनेक्ट करती है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इसकी स्क्रीनिंग की गई, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, और यही उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म इस महोत्सव से निकलकर वैश्विक मंच पर और भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। कैमरा पर्सन संजीव के साथ जया सिन्हा, TT न्यूज़, गोवा। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के दूसरे संस्करण के प्रतिभागी अब इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के रूप में अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही कुछ युवाओं से हमने की मुलाकात, जिनकी 2 फिल्में बहरूपिया और लेट्स मीट इस बार भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का हिस्सा है। हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कई नई पहल रही। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो एक ऐसी अनूठी पहल थी जिसने देश भर से युवाओं को भारतीय सिनेमा में अपनी पहचान बनाने का एक बेहद सुनहरा अवसर दिया। बीते साल यानी कि 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के दूसरे संस्करण के जो प्रतिभागी रहे, आज वो बतौर निर्माता, निर्देशक फिल्म दुनिया में काम कर रहे हैं। हमारे साथ ऐसे ही युवा जुड़े हुए हैं जिनकी फिल्म इस बार भारतीय पैनोरमा सेक्शन में स्क्रीन की गई। सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे, लास्ट मीट ये फिल्म नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में स्क्रीन की गई है, कैसा आपका अनुभव रहा 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के बाद इफ़ी में आने का? 75 क्रिएटिव माइंड के बाद मतलब इस साल नेक्स्ट ईयर ही हम लोगों को मतलब यहाँ आने का मौका मिला है। पहले तो एक बात है कि इंडियन पैनोरमा में हम लोग का ये फिल्म सिलेक्ट हुआ है लास्ट में, जो उसलिए मतलब हम जूरी या मिनिस्ट्री ऑफ सबको मतलब थैंक्स कर रहे हैं, मतलब धन्यवाद दे रहा है। और दूसरा बात है कि 75 क्रिएटिव माइंड में आया था, उसमें हम लोगों को 53 आवर्स फिल्म सेलेंस था। फिल्म बाज़ार के हब में ही हम लोगों को मतलब वो मिला था। फिल्म बाज़ार के हब में फिल्म बाज़ार भी देखा था, मार्केट कैसे मतलब प्रमोटिंग मार्केटिंग कैसे कर रहा है। उसके बाद भी फिल्म उसके अंदर ही हमको फिल्म 53 आवर्स में फिल्म एडिटिंग करके मतलब फिल्म 52 आवर्स में कंप्लीट करके इसमें स्क्रीनिंग भी हुआ था। पहली बार हम लोगों का फिल्म मतलब यहाँ हॉल में स्क्रीनिंग हुआ था लास्ट साल, ऑलमोस्ट बोल के एक 2 शॉर्ट फिल्म है। इस बार मतलब नेक्स्ट डे हम लोग का फिल्म यहाँ इंडियन पैनोरमा में आया है, ऑफिशियली हम लोग मतलब यहाँ आए हैं, इसलिए तो हम लोग कुछ मतलब बहुत हैप्पी हूँ। और दूसरा बात है कि लास्ट ईयर में जो 75 CMT स्टार्ट हुआ, बट इस साल भी मतलब 75 CMT से 75 सिलेक्ट हुआ है। उस मतलब हर देश का हर कोने से मतलब आ रहा है। जैसे मैं आसाम से मतलब जोरहाट से आया था, जैसे कोई मणिपुर से आया, लेकिन मैं अभी इस साल मैं एक मणिपुरी फिल्म लेके आया हूँ। मैं आसाम से हूँ, आसामीज हूँ, लेकिन मैं एक मणिपुरी फिल्म लेके मतलब यहाँ आया हूँ। मतलब ये मेरे लिए भी खुशखबरी है मतलब। बिल्कुल। और यहाँ पर एक और फिल्म बहरूपिया वो स्क्रीन की गई इंडियन पैनोरमा सेक्शन में। हमारे साथ भास्कर हैं। भास्कर, अपनी फिल्म के बारे में बताइए सबसे पहले तो। मेरी फिल्म बहरूपिया जो कि एक प्राचीन कला है भारत की, उससे जुड़ी हुई है, पर उसको मैंने कुछ नए तरीके से पेश करने की कोशिश की है और हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी लोगों को पसंद आएगी ये फिल्म। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का हिस्सा बनना और अब एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के रूप में काम करना, वो जो सफ़र रहा वो कैसा रहा? वो सफ़र काफ़ी अच्छा रहा।
चैलेंजेस तो हमेशा रहते हैं, 75 क्रिएटिव माइंड्स के पहले भी थे, अभी भी हैं, लेकिन ये है कि वो जो पूरा जो कैंपेन था, एक फ़िल्म कैंप तरीके से जो वहाँ पे जो काम हुआ, उसकी वजह से हमें ये सीखने को मिला कि हम टीम के साथ कैसे काम कर सकते हैं, किन लोगों को हमें अप्रोच करना चाहिए, क्या हमारा वर्क फ्लो होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जो हमें 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो में सीखने के लिए मिली, जो कि हमें अब इंडस्ट्री कंपैटिबल बनाती हैं और हम लोगों के पास जाके इजीली काम कर सकते हैं। बिल्कुल, एक शुरुआत की ज़रूरत होती है, वो आपको यहाँ ज़रूर मिली 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, लेकिन उसके बाद तो चुनौतियों से खुद का ही सामना करना है। किस तरह से वो रहा आपका अनुभव, और फिल्म बनाने को लेकर आप पहली बार कोई फिल्म एक बनाने जा रहे हैं, क्या कुछ चुनौतियाँ रही? देखिए, लास्ट ईयर CMOT में मैं इन दोनों के साथ आया था और मुझे 100 का नोट जो एक फ़िल्म थी लास्ट ईयर के CMOT में, उसमें मैंने कलर किया। और अब जब किसी को बताते हैं कि हमारी फ़िल्म शॉर्ट्स TV पर स्क्रीन हुई, TV पर आई और प्राइम वीडियो पर आई, तो बहुत अच्छा लगता है और प्रोफेशनली काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि इस टाइप के जब नाम आप लेते हो तो आपको आगे के प्रोजेक्ट्स लेने में हेल्प मिलती है। तो उस ढंग से हम लोग आगे के प्रोजेक्ट्स लेने में हमें हेल्प मिल रही है और हम अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, इस साल हम फिल्म लेकर आए हैं, एक फ़ीचर फिल्म भी बनाए हैं हमारी सेम टीम के साथ में। कोशिश करेंगे अगले साल एक फ़ीचर फिल्म लेकर आएँ। तो बहुत ज़्यादा कंटेंट आज प्रोड्यूस हो रहा है, मार्केट में आ रहा है, मोबाइल के थ्रू या इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के थ्रू। किस तरह से देखते हैं कि आपके लिए भी चुनौती ज़्यादा बढ़ गई है, कंपटीशन इस वक्त बहुत ज़्यादा फियर्स हो गया है? ओब्वियसली हर जगह पे, क्योंकि अब नए अलग अलग स्टेट से लोग आ रहे हैं और वो बहुत अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं। जैसे पहले हुआ करता था कि हमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ही आती थी, लेकिन इस टाइम पे, आजकल के टाइम में कंटेंट बहुत डिफरेंट। अगर आप OTT पे भी देखेंगे तो एक तरह से हर ऑडियंस के लिए सब चीज़ें वहाँ मिल रही है। तो और ख़ासकर जो ये प्रोग्राम हो रहा है, इससे मुझे लगता है कि सभी फिल्म मेकर्स को, एक पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होगा। आगे की राह किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ और अब तैयारी है? हाँ, हमने एक फ़िल्म भी बनाई है, हम उस पर काम कर रहे हैं, पोस्ट प्रोडक्शन में है वो फिल्म। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी, वो फीचर फिल्म है, जल्दी ही वो आएगी सामने। तो ये था एक टैलेंट कैंप, हम कह सकते हैं कि जो 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो की तरह जो 75 बच्चे थे, जो युवा थे, जो इस सिनेमा की दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते थे, उन्हें एक सुनहरा अवसर ज़रूर मिला। लेकिन आज वो बतौर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स इस दुनिया में, इस टूर में टूट चुके हैं और आज बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर दर्शकों के सामने आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी सफलता ये रही 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो से निकले इन युवाओं के लिए कि आज बतौर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर उनकी फिल्म भारतीय पैनोरमा खंड में स्क्रीन की गई और बहुत ही शानदार उन्हें इसका रिस्पांस भी मिला। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज़, पणजी, गोवा। और भी बहुत कुछ है खास। इसी 2023 की स्पेशल कवरेज गोवा से जारी है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सितारों का मेला और सिने प्रेमियों का जबरदस्त उत्साह। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का ये मंच लगातार और भी भव्य होता जा रहा है। आइए देख लेते हैं इसी हलचल में आज क्या है और खास। ਤੁਸੀਂ श्योर हो कि ਤੁਸੀਂ रेप ਦੀ FIR नहीं लिखवानी? इसी 2023 के फिल्म बाजार में इस बार दुनिया भर से आए फिल्म मेकर्स का जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ पर फिल्मों के बारे में, फिल्म से जुड़े हर आयाम पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। कोलैबोरेशंस की बात हो रही है, सहयोग की बात हो रही है। मेरे साथ इस वक्त एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर हैं जो अपनी फिल्म लेकर यहाँ पर आए हैं इफ़ी के फिल्म बाजार में। फिल्म ऑस्ट्रेलियन है लेकिन शूट पूरी तरह से भारत में की गई है। योगी देवगन, सबसे पहले अपनी फिल्म के बारे में थोड़ा बताइए। लोग यहाँ से स्टूडेंट बहुत जाते हैं तो रहते हैं एंड मॉडर्न स्टूडेंट्स फेल इन लव विद जो दूसरे गोरे हैं, गोरों के साथ। सो उनकी स्टोरी है कि उनको क्या कुछ देखना पड़ता है यहाँ आके घर में, तो दोनों का रिलेशनशिप, घर का रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है। तो उसके बाद स्टोरी आगे जाती है कि उनके बच्चा हो जाता है, ठीक है, तो घर वालों से उनकी बात नहीं होती है, तो वो वापस घर आती है, तो
उसकी स्टोरी है कि वो स्टोरी में क्या क्या कुछ उसके साथ होता है, उसका बच्चा किडनैप हो जाता है। किस तरह से जो प्रवासी भारतीय हैं उनके रिश्तों में वहाँ पर एक मुश्किलें आती हैं। ये जो फिल्म है आपने पूरी तरह से भारत में शूट की गई, किस तरह से वो एक अनुभव रहा, एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म को भारत में शूट करना, एक कोलैबोरेशन की हम बात कर सकते हैं? तो मेरी ये पहली प्रोडक्शन थी जो मैंने यहाँ इंडिया में शॉट करी है ना। तो बहुत अच्छा था, बहुत चैलेंजिंग था। सब कुछ मिक्स था इसमें। लेकिन मैं फॉरवर्ड करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो उन्होंने एक ट्रीटी थी जो चल रही थी बहुत पुरानी, उसको रिवाइव किया है कि बहुत अच्छी को प्रोडक्शन होंगी। सो उसी के लिए ये वाली फिल्म है कि ऑस्ट्रेलिया स्टोरी एंड इंडियन स्टोरी। सो शॉर्ट फिल्म इसलिए है कि यहाँ पे शॉट करी मैंने उतनी, क्योंकि एक्ट्रेस यहाँ की थी, सो बहुत इजी था। लेकिन फीचर फिल्म्स जो होगी वो बड़े लेवल पे होगी, दोनों कंट्री में शॉट होगी, कोलैबोरेशन, इसके बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी सारे कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरह से जो फॉरेन प्रोडक्शंस हैं, फॉरेन फिल्म मेकर्स हैं, उन्हें भारत में आकर्षित किया जाए और जो को प्रोडक्शंस हैं उन्हें यहाँ पे ज़्यादा प्रोत्साहन मिले। योगी, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह से अगर आप आगे को प्रोडक्शन की बात करते हैं, आपने बात की कि जो भारत ऑस्ट्रेलिया जो फिल्म ट्रीटी है उसे भी रिवाइव किया गया है, क्या कुछ उम्मीदों के साथ आप यहाँ पर आ रहे हैं? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत काफ़ी एक सिंगल विंडो क्लियरेंस कर दिया गया है, जो फॉरेन फिल्म मेकर्स हैं आपके जैसे जब आते हैं यहाँ पर बेहतरीन काम कर सकें, उसका फ़ायदा मिला आपको? उसका फ़ायदा मिला है, और अभी बातें भी चल रही हैं। तो मिनिस्ट्री की टॉक भी हुई है कि वो बहुत इजी कर रहे हैं। सो हमारे लिए इजी होगा कोई ना कोई बंदे को लेके। जो पुराना इंडिया था उसमें बहुत चेंजेस हो रही है फॉर अ न्यू इंडिया। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचा है। हर एक दिन के साथ इफ़ी 2023 हम सभी के लिए हजारों यादें बना के गया है। इंतजार रहेगा अगले साल का जरूर, लेकिन अभी भी आखिरी पन्ना बाकी है। कौन होगी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, किसको मिलेगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, कौन बनेगा गोल्डन पीकॉक का हकदार, ये तमाम बातें आपको पता चलेंगी 28 नवंबर को भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के शानदार समापन समारोह में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इफ़ी 2023 की स्पेशल कवरेज अभी भी जारी है। फिलहाल आज के इस अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।